کے آپ کی برائی کرتا ہے. تو رمشا کہتی ہے ان لوگوں پہ مجھے اکثر غصہ آتا ہے. تو کیا یہ جیلسی ہے؟ دیکھیں یہ جیلسی نہیں ہے. جیلسی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو کسی اور سے, اور کہیں آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہو, یا کوئی ایسی چیز جو آپ جس سے آپ پیار کرتے ہو, آپ محبت کرتے ہو, اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو, تھریٹ ہو, تو پھر جیلسی فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جیلسی نہیں ہے, یہ ایک جینوئن فیلنگ ہے کہ ایک ریزینٹمنٹ ہوتی ہے, غصہ آتا ہے کیونکہ وہ شخص منافق ہے, اس کے دو فیس ہیں. تو اس میں جیلسی کا عنصر شامل نہیں ہے, مگر کوشش کریں کہ لوگ جیسے ہیں ان کو اسی طرح ایکسپٹ کر لیا کریں. آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی, کیونکہ اندر انسان کچھ اور ہوتا ہے, اسی لیے پروردگار اندر کی باتیں خود جانتا ہے اور دوسروں کو نہیں بتاتا. یعنی اللہ نے انسان کے ایپ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, تو اگر ایپ اس میں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے تو جسٹ کیپ کوائٹ, دیٹس اٹ. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کون بچے, کہاں سے؟ میرا نام تنزیل ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں. اور ڈاکٹر معید السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں آپ کے لان میں بھی آتا تھا, آپ سے بہت پہلی بار میری کال لگی ہے. آپ کے لان میں بھی آیا کرتا تھا میں, اور پہلی بار لگی ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اچھا مجھے نا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. جی پوچھو بیٹا. کہ میری امی نا مجھے ہر پازیٹیو وے پہ لے کر چلتی ہے, پر مجھے نا گاڑیوں سے نا کھیلنے کا مطلب بہت شوق ہے, اور گاڑیوں میں بس بہت جگہ ہے نا, تو میرے دوست آتے گھر میں میرے, وہ میری گاڑیوں کو دیکھ کر نا مجھ سے نا جیلس ہوتے, اور نہ وہ مجھ سے چھیننے ہی کرتے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ تنزیل آپ کی کال کا, کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا. بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کو بھی. اچھا مجھے آپ بتائیں, کیا جیلسی از دا مدر آف آل سنس؟ Not necessarily. The mother of all sin basically is wrong knowledge. Wrong knowledge. Ignorance یا wrong knowledge. Okay. جہالت جس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ نے دھواں دیکھا اور آپ سمجھ گئے آگ ہے. تو یہ جو اس کو نی سائنس بھی کہتے ہیں, wrong knowledge جو ہے وہ مدر ہے آف آل, تمام قلبی بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ جہالت ہے. وہ جہالت ہے. اچھا چلے مجھے بابا, فاطمہ نے بھی ایک سوال پوچھا ہے کہ سر آپ نے کل بتایا کہ کوئی آپ سے جیلس اگر ہوتا ہے تو اس کی پازیٹیو سائڈ کو آپ خود انہینس کرو تو اس کو احساس ہوگا کہ یار یہ بھی مجھ سے شاید جیلس ہوتا ہے, یا یہ میری پازیٹیو سائڈ کو دکھتا ہے. تو وہ لوگ جو ریلیپس کر جاتے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن بعد میں ریلیپس کر جاتے, اس کا دیکھیں پہلی تو چیز ہے, فاطمہ کو یہ چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ ریلیپس ہوا ہے نہیں ہوا. اگر آپ کی انٹینشن پازیٹیو ہے اور آپ اس شخص کو ٹرانسفارم چینج کرنا چاہتی ہیں تو کئی دفعہ اٹس اے لائف لانگ ایفرٹ, زندگی بھر آپ کو کرنا پڑتا ہے نا. جیسے اولاد کے لیے آپ زندگی بھر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو دوسرے کے لیے بھی زندگی بھر کرنا پڑے گا آپ کو, رائٹ. تو آپ کوشش کریں کہ وہ چاہے ریلیپس ہو جائے, پھر کوئی طریقہ ڈھونڈے, پھر کوئی اس کا کرے, اس طرح کر کے آپ کر لیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو سلولی گریجولی بار بار ایک چیز کرنی پڑے گی. اگر کوئی ریلیپس ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ وہ ریلیپس, فار ایگزامپل اگر اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ کے بچے کو بخار ہوتا ہے, ایک دفعہ بخار ہوا, آپ نے اس کو دوائی دی, ہو سکتا ہے وہ کل پھر 2 مہینے بعد پھر اس کو بخار چڑھے, کیونکہ 3-4 دفعہ بخار چڑھے گا تو آپ اس کو کیا دوائی دینا بند کر دیں گے؟ نہیں دیں گے, کیونکہ بخار تو آتا جاتا رہتا ہے. اسی طرح اگر اس طرح کی کوئی ذہنی بیماری یا اس طرح کی کوئی جیلسی کی عادت آتی جاتی رہتی ہے تو اس شخص پہ آپ ایفرٹ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ شخص سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. مدیحہ بات کر رہی ہوں کراچی گلشن حدیث سے. مدیحہ, الوینا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. یو آر لوکنگ سو نائس. آئے میرا بچہ, تھینک یو سو مچ سویٹ, تمہاری نظریں, تمہارا پیار ہے. مجھے یہ پرابلم شیئر کرنا تھا. ایک ڈیمپنیس ہوتی, اس کا یہ مسئلہ ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے نا گھر میں تو اس کو وہ مطمئن نہیں ہوتی, بالکل سیٹسفائی نہیں ہوتی کہ میری چیز اچھی نہیں ہے, دوسروں کی چیز مجھ سے زیادہ اچھی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو فیلنگ ہے اس کی کیسے ختم کر سکتی ہے؟ اوکے, کیا یہ بھی جیلسی ہے؟ ٹھیک ہے, چلے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا الوینا, اینڈ لو یو سویٹ ہارٹ. تمہارے سوال کا بھی جواب دے دیں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, میں اسامہ بات کر رہا ہوں. جی اسامہ, تم اتنے دہل کا اور ٹیرر پھیلاتے ہو, تم نے اسامہ کا ہے نا کہ بتاؤ. اچھا بتاؤ. نہیں, میں لایا صاحب کا بیٹا ہوں. ہاں, میں لایا صاحب کا بیٹا ہوں جو آپ اوہ یایا صاحب کے بیٹے, کیسے ہو؟ جی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام بیٹا. سر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے سر نیکی کو کھا جاتا ہے, تو اس کا مطلب بھی بتا دیں, اور اگر میرے اندر حسد ہے تو میں اسے ختم کرنے کے لیے کیا کروں؟ اوکے, گڈ کوشچن. بیٹے تمہارا پہلا سوال کیا تھا, تھوڑا سا مس ہو گیا. حسد نیکی کو کھا جاتا ہے. اچھا, میں اس کا معنی پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اتنا تم نے گہرا سوال اپنے والد کی طرح پوچھا ہے کہ
कि क्या कहूँ, मैं वही कहती हूँ ना, जीन्स में इंटेलिजेंस ट्रांसफर होती है, तो याया साहब की इंटेलिजेंस तुम में भी हो, सामा तुम भी इतने इंटेलिजेंट हो, इतना अच्छा सवाल पूछा। वैसे गुजरात से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी उमर खालिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहना, आप सुनाएं, सब ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र मेरे भाई। जी बताइए जेलसी का। जेलसी का मैंने बाद में पूछना है, मैंने आगे भी एक दिन कॉल की थी, तो इस तरह के मतलब पूछना था। तो वो उस दिन आपका फोन भी आया था, तो मैं उस वक्त पे था, इसलिए फोन पे अटेंड हो सकता। दोबारा मैंने कॉल की आपको, वक्त तो दोबारा नहीं मेरी मुलाकात, यानी कि तो बात नहीं हो सकी। वो सिस्टर के ससुराल वालों की तरफ से बहुत तंग है, हम लोग परेशान है बहुत। असल में बहनोई जो होता है वो बाहर होता है, क्या हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा यानी कि घर वाले पीछे से टेंस करते हैं। यहाँ तक हमने कहा कि वो किसी तरीके ले जाए, हम पैसे दे देते हैं, साथ ले जाए, कम से कम ये आए दिन उसके ऊपर अपनी तरफ से ये बुलान वगैरह लगा देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसे खा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है। इसलिए कुछ हेल्प कीजिए, कोई चीज बताइएगा। आपकी बहन का प्रॉब्लम है? यस आपकी बहन, अच्छा। असल में आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी। आप एक काम करेंगे, मुझे एक ईमेल कर देंगे तफसीलन, और ये बता दीजिएगा कि गुजरांवाला से बात कर रहे हैं, और आपकी फोन पे आपने बात की, तफसील से मुझे एक ईमेल कर दें, तो मैं आपको ईमेल पढ़ के फिर मशवरा दूं कि क्या कर सकते हैं। ईमेल डॉक्टर साहब मेरे पास नहीं है ना। अच्छा एक काम करो खालिद साहब, मैं आपका नंबर इनसे ले लेती हूँ, जो कंट्रोल रूम में है। आप उनके पास नंबर छोड़ दें अपना, मैं आपको कल सुबह या कल दोपहर तक मैं कॉल करूंगी। मैं ना करूँ तो 0345822111 पे आप कॉल कर दीजिएगा, और कहीं का उरूज से बात कराते तो मैं उस वक्त आपसे क्लियरली बात डिटेल में पूछ लूंगी। ठीक है खालिद साहब? अच्छा, तो आप ये लाहौर कब आ रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब लाहौर आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, मार्च में आ रहे हैं। चलो ठीक है, हम लोग अपना सिल्वा का कोर्स करें लाहौर में, आप जरूर आके मिलिएगा। कल मैं आपका नंबर वगैरह ले लूंगी, इनसे अभी नंबर ले लूंगी। अगर मैं कॉल करना भूल जाऊं तो प्लीज आप 0345822111 पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। तजम्मुल साहब अटक से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कैसा है अटक? अटक ठंडा है। ठंडा है, लेकिन मजे का ठंडा है। अच्छा जी बताइए, जेलसी का ठंडा है तो जेलसी तो होगी नहीं? नहीं, जेलसी तो बिल्कुल नहीं है, ना मैं कभी करता हूँ, और ना अगर मुझसे कोई करता है तो आई डोंट केयर। गुड गुड। बताइए जेलसी का कोई सवाल है? अच्छा नहीं, सवाल तो ये है ना मेरी बहन के, कोई सवाल इस तरह नहीं है। एक तो 40 में नहीं 1 किया हुआ है ना, तो इसके लिए दोबारा वचर में करवा दें। ठीक है। और सर से थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने वो मेरी मिसेज के सवाल के जवाब दे दिया था। बहुत शुक्रिया, प्लेजर, बहुत शुक्रिया। प्लेजर। ठीक है। और सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर से। जी सर जी कहिए। ये हमारे इलाके में रेकी पे अवेयरनेस बिल्कुल निल है ना? सही है। तो अगर इस पे कोई प्रोग्राम हो जाए तो चले, अगर आप अरेंज कर सकते हैं कोई ऐसी एक घंटे की महफिल हो, कोई 60-70 100 लोग कहीं जमा करा लें, तो हम आके फ्री लेक्चर दे देंगे रेकी क्या है। सर की बहुत इस हिसाब से ना माइंड साइंस के वाले से बहुत बैकवर्ड है। मैं समझ रहा हूँ। हमारी कोशिश यही है कि हम जहाँ अंधेरा हो वहाँ आके चिराग जलाएं। चले थोड़ी सी अरेंजमेंट आप कर ले तो हम आके तजम्मुल दे साहब देंगे। एक और आइडिया भी है सिंपल सा, कि YouTube पे हमारे रेकी के बारे में, माइंड साइंसेस के हवाले से बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो स्पेशली हमने इसलिए कि जिन लोगों को नहीं नॉलेज होती, या जो लोग बहुत ज्यादा अनअवेयर इस बार से माइंड साइंसेस के, तो उसके लेक्चर्स हैं। आप वो लेक्चर निकाल के 3-4-10-15 लोगों की महफिल कर दें, वो जाके और 10-15 लोगों को बोले। जब 100-150 लोग जमा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी कि मैं और डॉक्टर मोइज वहाँ फ्री लेक्चर आके देंगे। डॉक्टर मोइज लेक्चर देंगे, मैं बार बैठ के नाम ले लूंगी। तो आप ये अरेंज करें, हम इंशाल्लाह आपके पास वहाँ जरूर होंगे। इंशाल्लाह मैं इस पे कोशिश कर लूंगा। यही मशवरा मुझे मतलब शाहिद भाई ने भी दिया था, उनका भी मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। लेकिन बस यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि लोगों के जहनों में क्यों नहीं बैठती बात। बस वक्त लगता है, और ये बड़ा मुश्किल, ये एक जिहाद है जी, जिंदगी में लड़ना पड़ता है। मुझे आप याद आ गए हो, आप कौन हो पता है आपको? मुझे अब याद आ गया, अपने 4 Dimension 1 की वर्कशॉप की थी, अब कर्नल शाहिद के पास भी जाया करते थे। सो आई रिमेम्बर यू नाउ। और आपसे इंशाल्लाह इस 4 Dimension में मुलाकात होगी, जब संडे को हमारा हो रहा है 19 तारीख को, उस पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, उरैब आफ्ताब साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो जाती? ठीक ठाक, बिल्कुल मजे में, बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ मैं, मजे में। बताओ।
जी, मुझे जेलेसी के टॉपिक पे कुछ कहना था। कहो। कि मैं स्कूल में था तो स्कूल में हूँ तो मेरे जैसे रिजल्ट बहुत अच्छा है, एग्जाम में, पेपर में, मंथली टेस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझसे जेलस होते थे कि ये हम इतना अच्छा ही पढ़ते हैं, फिर ये कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, इसको इतनी अच्छी ग्रेड कैसे मिले। तो और कभी कभी वो कुछ अच्छा कर ले तो मुझे उनसे जेलेसी होती है। तो मुझे ये पूछना था कि इसका कोई हल है और इसके बारे में कुछ हो सकता है? ठीक है, चलो हम इस बात को डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद कुछ 11 क्वेश्चन है इसके आंसर देने, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा कि 11 को फिर ये 11 जो जेलेसी के जो क्वेश्चन है उनको कैसे मारना है। तो आप बस देखते रहिए डॉक्टर मोइज लंच, बिकॉज हम जैसे ही वापस आएंगे तो आपके सवालों के जवाब डॉक्टर मोइज देंगे। सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़े सारे सवालों के साथ हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं आपके सामने फिर से एक ब्रेक का सामना करने के बाद। जेलेसी के ऊपर बात करने के लिए मेरी जबान मेरी दांतों के बीच में आ गई और मेरी जबान लड़खड़ा गई। हो सकता है कोई मुझे जेलस होकर मुझे गाली दे रहा, कहते हैं जब कोई आपको गाली दे तो आपकी जबान दांतों के बीच में आ जाए। इज इट ट्रू? कहते हैं। अच्छा चले, हमने फातिमा साहिबा का कॉल आया था तो उनको रिलैप्स का तो हमने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। मिसेस शाहिद ने कहा था कि जेलेसी का जो टॉपिक है वो हमें पहले रखना चाहिए था बनिस्बत बाद में रखने के, लेकिन एटलीस्ट हमने रख तो दिया। असल में होता ही है कि हमें बेसिकली ये लर्निंग प्रोसेस, ये लाउंज जो है ना, ये एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह है। अब आप देखें इतना सीरियस प्रोग्राम किसी चैनल पे बच्चे देख सकते हैं? कभी नहीं देखते। इस प्रोग्राम को बच्चे देखते हैं, इसका मतलब है हम उस लेवल पे भी आते हैं जहां हम बच्चे के साथ रिलेट कर सकते हैं, और फिर उस लेवल पे भी जाते हैं जहां हम इंटेलेक्चुअल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। राइट, वेरी ट्रू। जो टॉपिक जिस तरह आ जाता है हम ले लेते हैं। अगर आप उनके जहन में कोई टॉपिक है तो हमें बताएं, और आप प्लीज बताइएगा हमें, क्योंकि आप लोग सबके जो सजेशन थे उसी से ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मोहम्मद इकराम, मिस्टर इकराम जो है हमारे गुजरावाला से, जो हमारे रेगुलर कॉलर है, उनने कहा है कि एक तो ये कारोबारी जेलसी ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत घरेलू जेलसी से या किसी और जेलसी से। आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में भी जेलसीज होती है, कारोबार में भी होती है, रिश्तेदारों में जेलेसी होती है, घर में भी होती है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो घर में जेलेसी नहीं होगी। कारोबार के अंदर जेलेसी होती है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से जेलस है, बड़े टाउट्स रखे जाते हैं, तुम उसके पास जाके बंदा खींच के लाओ वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आप जिस माहौल में रहते हो आपको वहीं पे जेलेसी, औरतों को घर में नजर आती है तो मर्दों को बाहर नजर आती है, लेकिन जेलेसी हर जगह ही मौजूद है। इट्स नथिंग यू नो वी अशेम टू डिस्कस अबाउट इट। अच्छा, एक और कॉलर है, जो एक और हमारे साथ सवाल कॉलर बोलो, हमारे किड्स में जब जेलेसी पाई जाती है, बच्चों के अंदर जब जेलेसी पाई, तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज है कि माँ बाप को इस चीज पे नजर ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आप पता चल जाता है कि ये बच्चा जेलस हो रहा है, राइट, उस बच्चे को आप इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दे, और जिस पे वो जेलस हो रहा है उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा आपको, उस बच्चे को। तो अगर भाई जेलस है बहन से, तो माँ बाप को बहन पे भी बड़ा काम करना होगा, उसको समझाना होगा कि ये फीलिंग आपके भाई में क्यों आ रही है। ठीक है, बहन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, वो उसकी दुनिया में नहीं भाई की दुनिया में चली जाए, भाई को अप्रिशिएट करे, भाई के साथ अपनी चीजें शेयर करे, इनफैक्ट उसको अपना एक दोस्त बना ले, तो जेलेसी खत्म हो जाती। जेलेसी होती क्या है? बहुत सारी रीजन। एक थ्रेट हो आपको किसी किस्म का, डर हो यानी परसीव भी हो सकता है, रियल ना भी हो, या आपकी जिस चीज से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको छिन जाने का डर हो, इनसिक्योरिटी आपको। दूसरा, आपको ऐसा लगे कि मुझे प्यार नहीं दिया जा रहा, किसी और को तवज्जो, ठीक है, अटेंशन, या फिर आपके अंदर कोई कमी हो जिसको आप समझते हो कि आप में वो कमी हो सकता ना हो, मगर आपको लगे कि कमी है। ठीक है, जैसे कि मुझे मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ साल अरसे पहले तक मुझे ये फील होता था, जो वेरी फ्रेंकली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कि मुझे लगता था आई एम नॉट एज वाइट एज माई फ्रेंड्स, राइट। तो आई फील दैट आई वाज जेलस फ्रॉम अ फ्रेंड दैट वाज वेरी डियर टू मी, शी वाज टू वाइट, एंड आई फील समहाउ मैं कहीं ना कहीं से जेलसी बनिस्बत उसके कि मैं उसे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन एक जेलसी का फैक्टर था, कंपैरिजन था। जब आप कंपेयर करेंगे, एक तो दुनिया के अंदर एक चीज याद रखे, अपने बच्चों में तरबियत डाले कि कभी जिंदगी में कंपेयर ना करें, इसलिए कि जब आप कंपेयर करेंगे, एक बात याद रखें, दुनिया में कोई ना कोई शख्स आपसे अच्छा होगा और कोई ना कोई आपसे कमतर होगा, राइट। तो आप हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है। तो बेहतर ये कि जो आप हैं, जैसे आप हैं, अपने अंदर से वो सलाहियत ढूंढे
जिसमें आप सबसे बेस्ट है और उसी को पॉलिश करो। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे में वो अच्छी सलाहियत देखकर उसको पॉलिश करे तो उसके अंदर से जेलसी चली जाएगी। और दूसरी एक और बात है कि आपको कोई लगता है आपसे बेहतर है या आपको कोई लगता है कि आपसे कोई कमतर है, तो ये आपका परसेप्शन है, ये कोई किसी